So students, welcome to our YouTube channel Success Only. In this video lecture, we will study about random variable, okay, and also discrete random variable, and also we will find probability distribution of random variable. Okay, so let's see, understand. That is, first one is random variable. क्या है? The basic definition is if the numerical values assumed by a variable, if the numerical values assumed by a variable are the result of some chance. क्या क्या है? Numerical values assumed by a variable are the result of some chance factors show that a particular value cannot be exactly predicted in advance. मीन्स एडवांस में हम उस वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, देन द वेरिएबल इज देन कॉल्ड अ रैंडम वैल्यू. वैसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल. वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, एक्चुअली क्वेश्चन करने से पहले हमें डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. Okay, so let's see the definition. Discrete random variable. Okay, so discrete random variable, let's understand the definition. A discrete random variable is one which can assume only isolated values. Very important, only isolated values, known as discrete random variable. Let's see example. The example is the number of head in 4 tosses of a coin is a discrete random variable as it cannot assume values other than 0, 1, 2, 3, 4. क्लियर? जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, क्लियर, द नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 4 बार टॉस करते हो तो क्या मिलेगा वैल्यू? हेड विल बी, या तो 4 बार आप टॉस करोगे, चारों बार में चारों बार क्या आ जाए? टेल मिल जाए. मीन्स नंबर ऑफ हेड क्या मिला? 0. या हो सकता है कि एक बार हेड मिले, बाकी 3 बार टेल मिले, 2 बार हेड मिले, बाकी 2 बार टेल मिले, 3 बार हेड मिले, बाकी 1 बार टेल मिले, और हो सकता है कि चारों क्या मिल जाए? हेड मिल जाए. तो इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं मिल सकता है. क्लियर? सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. क्लियर? नो कंफ्यूजन? ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल, देन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ वी विल स्टडी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स सी व्हाट इट इज. सो लेट ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X assumes values x1, x2, x3 up to xn. Okay, and corresponding to these values probabilities are with probabilities p1, p2, p3 up to pn. Okay, corresponding to x1 probability is p1, corresponding to x2 probability is p2, so and corresponding to xn probability क्या है हमारा? pn respectively, where capital P and this is, that is capital X equals to xy equals to py. means for x1 we have p1, क्या पुट करेंगे? I की वैल्यू 1 2 3 up to n, and this probability is either 0 or greater equals to 0. नेगेटिव में नहीं होगा. For each xi and p1 plus p2 plus p3 plus pn, this one equals to summation, you can also write this summation I equals to 1 to n pi equals to 1. मीन्स हम ऐसे भी जानते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? 1 होता है. तो यही रिप्रेजेंटेशन है क्या? टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारा क्या होता है? 1. क्लियर? वेरी सिंपल. नाउ अब हमने यहाँ पे एज अ टेबल में कैसे दिखाया है? हमारा वेरिएबल x है, x में हमने लिया अलग अलग x1, x2, x3 अप टू xn. कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 वी हैव वेरिएबल p1, कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 probability p2, corresponding to x3 probability p3, and corresponding to xn probability is pn. Clear? Then this is called the discrete probability distribution for x. Very simple. इस तरीके से हम discrete probability distribution हम शो करते हैं. क्लियर? अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि कैसे गिवन क्वेश्चन होगा, उसको कैसे हम discrete probability distribution में ट्रांसफॉर्म करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. Question based on random variable, that is discrete random variable, is, let's see, 5 defective bulbs are accidentally mixed with 20 good ones. means 5 खराब बल्ब धोखे से
20 अच्छे बल्ब के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मीन्स डायरेक्टली आप देख के नहीं बता सकते हो कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से कितना बल्ब्स हम एट रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं? 4 बल्ब्स। ठीक है, then we have to find the probability distribution of the number of defective bulbs if 4 means 5 हमें 4 बल्ब्स लेना है, उसमें से हमें चूज करना है कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स मिला। क्लियर? लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो लेट x डिनोट द सॉल्यूशन, let capital X denote the number of defective bulbs. Let capital X denote the number of defective bulbs. Defective bulbs. Clear? So X can take the value. So capital X can take the values, क्या क्या हो सकता है कैपिटल X की वैल्यूज? X किसको डिनोट कर रहा है? डिफेक्टिव बल्ब्स को। 4 बल्ब्स हमें निकालना है, तो हो सकता है कि आप 4 बल्ब्स निकालो, उसमें सारे बल्ब्स अच्छे निकल जाए, तो डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगा? 0। हो सकता है कि 4 में से 1 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो, और हो सकता है कि चारों बल्ब डिफेक्टिव हो। क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस। Now number of defective bulbs, number of defective bulbs कितना है? कितना मिक्स कर रहे हैं? 5। number of defective bulbs equals to 5 and number of good bulbs, number of good bulbs equals to 20. Clear? So total number of bulbs equals to 5 plus 20, that is 25. Very simple. Now we have to find the probability having 1 defective bulbs in the lot of 4. ठीक है, 4 के लॉट में हमें क्या निकालना है कि कितने कितने हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स आ रहे हैं। तो लेट्स सी नाउ, इस वाले पार्ट्स को हमें जा रहे हैं सो दैट कि ये वैल्यू हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ x और x हमने लिया यहाँ 0। इट मीन्स फर्स्ट लॉट में हमें कोई भी डिफेक्टिव बल्ब्स नहीं मिला, नो डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियर? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 गुड बल्ब्स। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? किसमें से लेना है? गुड बल्ब्स में। टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स क्या है? 20। सो दिस इज 20C4 अपॉन 25C4। क्लियर? 20 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कहाँ से मिल रहा है? गुड बल्ब से। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या है? 25। तो इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 20C4 अपॉन 25C4 एंड वैल्यू विल बी 969 अपॉन 2530 अपॉन 2530। क्लियर? नेक्स्ट वन व्हाट वी विल फाइंड? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग x equals to 1 means नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 1, देन गुड वंस, जो कि 4 के लॉट में हमें निकालना है, तो एक डिफेक्टिव मिला तो बाकी 3 अच्छे बल्ब्स मिलेंगे। देन इस डेटा को हमें याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफेक्टिव 5, गुड वंस 20 एंड टोटल 25।
Clear? Now, so probability of having x equals to 1, it means one defective and three good ones. Clear? So this is, एक कहां से निकालना है हमें? डिफेक्टिव में से. डिफेक्टिव कितना है? 5 है. मीन्स दिस इज 5C1 एंड बाकी कितना बल्ब रह गया? 3 कहां से निकालना है? अच्छे बल्ब में से. गुड वंस मीन्स 20. सो रेस्ट ऑफ द 20C3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 25C4. वेरी सिंपल. क्लियर? तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो यही मिलेगा 2530 एंड दिस वन 5C1 इंटू 20C3 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा 380. क्लियर? NCR का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड n माइनस r. इससे हम ये सॉल्व करते हैं. नाउ तो 2 हमने सॉल्व किया है. नाउ जस्ट फाइंड थर्ड वन. क्लियर? सो फर्स्ट को मिटा दे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू नाउ 2. इट मीन्स probability of 2 defective and 2 good ones, 2 defective and 2 good ones. मीन्स 2 डिफेक्टिव कहां से निकालना है? 5 में से. दिस इज 5C2. रेस्ट ऑफ द 2 गुड वंस अच्छे बल्ब में से 20C2 एंड अगेन दिस इज 25C4. टोटल बल्ब हमने 4 निकाला. देन दिस वैल्यू बिकम्स 380 by 2530. Clear? Now last one we will find probability of having 3 defective bulbs. X equals to 3, then x equals to 3, so it becomes 3 defective and 1 good. Very simple. 3 खराब बॉल्स और 1 अच्छा बॉल्स. नाउ देन इट बिकम्स 5C3. डिफेक्टिव में से 3 लेना है तो दिस इज 5C3 एंड रेस्ट ऑफ 20 में से कितना लेना है? 1. सो 20C1. देन द वैल्यू ऑफ दिस वन 5C3 इंटू 20C1 दैट इज 40 by 2530. दिस वन इज 40. तो ये वैल्यू हमारा मिला 40. वेरी सिंपल. नाउ लास्ट केसेस हो सकता है कि क्या कि 4 हमने बल्ब निकाला और चारों का चारों हमारा डिफेक्टिव मिल गया. सो नेक्स्ट केसेस विल बी x इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग all 4 defective. Probability of having all 4 defective. It means चारों के चारों आपको कहां से लेना है? डिफेक्टिव में से. सो दिस इज 5C4 अपॉन 25C4 which equals to 1 upon 2530. तो हमने x इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट किया, 1 पे कैलकुलेट किया, 2 पे कैलकुलेट किया, 3 पे कैलकुलेट किया और देन 4 पे कैलकुलेट किया. अब इसको हम टेबल बना के लिख दे, देन दैट विल बी अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ ये रिजल्ट हमें लिखना है. सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. The probability distribution table is वैल्यू ऑफ x हमने क्या लिया? 0, एक बार 1, 2, 3 एंड 4. x1, x2, x3, x4, x5 corresponding to this one probabilities, that is p of x. फर्स्ट केसेस में 0 केसेस में हमें क्या मिला था? दैट इज 969 अपॉन 2530. x इक्वल्स टू 1 के केस में क्या मिला था? 1140 अपॉन 2530.
x इक्वल्स टू 2 के केस में क्या मिला था 380 अपॉन 2530। x इक्वल्स टू 3 के केस में 40 अपॉन 2530, 40 अपॉन 2530 और 4 के केसेस में 1 अपॉन 2530, 1 अपॉन 2530। वेरी सिंपल। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।